Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 27th June 2020. So let us see which are the important articles that have appeared today in the Hindu newspaper. So we have segregated for mains examination and for prelims examination. So first of all we will see which are the important articles for mains examination, then we will shift to prelims examination. So first article, editorial, page number 6, getting out of guns, germs and steel crisis. Now until now we have seen various articles related to, let's say, India China standoff, India and Pakistan relations, India Nepal relations and COVID pandemic and economic slowdown. Now the article is blending all these issues that India is facing at present. Okay, so this is the significance of article, that all three things it is discussing in single article, and such kind of question or essay you can expect. So what guns, germs and steel, let's say steel in this let's say what you can say name of the article suggesting here. In the first paragraph it has said that there is a famous book, that is Guns, Germs and Steel, Facts of Human Societies. This was written by Gerard Diamond. In this, the guns represents at present the correlation that the writer is giving in these three. At present, the India is facing the problems related to guns, that is Chinese guns on the border or the border standoff. Germs that it is talking about is that COVID-19 or the coronavirus, and still it is talking about the industries and the economic downturn that India is facing at present. Okay, so such kind of relation you can use in your essay also. Okay, so you can note this down. At the same time, the common thread across these three is that its resolution requires significant financial resources. Basically, article in the middle part is discussing about the financial resources that are required to, let's say, deal with these three challenges that India is presently facing. And in this it has given some important facts that can be mentioned in your mains examination and let's say GS and essay top if it appears in your essay paper. Like India's defense budget at present is 2% of its GDP, wise China's is quite 4 times larger than this. और the public health expenditure it is 1.5% of GDP. चाइना का जो है वो 3% है GDP के उनके, और अमेरिका का जो है वो 9% है. यहाँ पे मैं एडिशनल आपको बता दूँ, हियर द एडिशनल फैक्ट इज़ दैट नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया aims to have, let's say, double this public health expenditure, that is 3% of GDP. We want to increase that. Okay, so Indian economy has 4 major drivers. ये आपको कुछ बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है लोगों का, वन ऑफ द ड्राइवर इज दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सेकंड वन, देन थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट, investment in terms of private investment, and fourth one is external trade or international trade. Okay, so government needs to spend an additional 8 percentage points of GDP, while revenue will be lowered by 2 percentage points of GDP. The combined gap is 10% of GDP. So yes, analysis, though it is the personal let's say analysis of the writer, we can, let's say, use this as for, let's say, to support some arguments. Yes, some basic is economic theory suggests that if money is printed at will, then it will lead to increase in prices and inflation. Yes, we know that in basic economics we have learned about this. जब भी मनी सप्लाई बढ़ता है इन इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स दिखाई देते हैं, राइट. देर आर चांसेस ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट in the economy. Okay, so this is basic that is given in this article. In conclusion part it is saying that yes, in way forward part it has says that yes, India can have 2 options. One is that it can borrow, the government can borrow for its spending to deal with these challenges, and second aspect it is talking about is that printing money by RBI or the central bank.
and give it to the government. Okay, but in both cases what is going to happen, the article is saying that yes, the rating agencies will downgrade India's position, and that is going to ultimately hamper the overall economic situation of the country. Okay, so the in conclusion part it is saying that the best way forward will be to borrow. Okay, so that yes, in future whenever the let's say economy recovers, it can let's say recover the revenue part, and then it can let's say return whatever that borrowed money from international organizations like World Bank and IMF. Okay, so such kind of thing the article is talking. So what kind of question or the essay topic we can expect? Guns, germs and steel crisis in India. ओके, सो आपको एक कोरिलेशन पता होना चाहिए कि अगर ये वर्ड्स यूज़ होते हैं तो आपको लिंक करने आना चाहिए कि गन्स मतलब ये एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ की बात कर रहा है, या जर्म्स मतलब ये कोरोना वायरस की बात कर रहा है, या स्टील मतलब जो है वो इंडस्ट्री की बात कर रहा है. फाइन, यस. Next article again on page number 6, the pandemic imposes a steep learning curve. कल ही हमने एक आर्टिकल देखा था ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में. Again the article is talking about the online education, but some new aspects that we will cover in this topic or in this article. Again the context is same, online education. Here the article is talking about let's say which are the courses that are not going to be online. Yes, courses that traditionally offer laboratory or practical component, तो उनको कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ऑप्शनल या हम बोलते हैं ऑनलाइन एजुकेशन का. ठीक है, एंड देर इज, ये हमने कल पढ़ा था, देर इज ह्यूज डिजिटल डिवाइड इन आवर कंट्री इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ एंड रिलायबल कनेक्टिविटी एज वेल एज अनइक्वल एक्सेस ऑफ फंडिंग. तो अभी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए दो प्रोग्राम्स है, आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स कौन से हैं. एक स्वयं है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो ऑनलाइन स्टडी के लिए है, ऑनलाइन कोर्सेज है. ठीक है, एंड नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग. ओके, सो द आर्टिकल इज सेइंग दैट बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ दीज ऑनलाइन कोर्सेज नीड टू बी एनहांस्ड. अभी जो है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, एट द सेम टाइम इट्स स्प्रेड इज नॉट देयर, सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी. The article also mentions about the importance of online education or self education, and it has given reference to Gandhiji's नई तालीम. अब ये आपको पता होना चाहिए, this was focused in let's say वर्धा scheme of education. Excuse me. जो गांधी जी ने प्रमोट किया था इन लेट्स से 1940s, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन. यहाँ पे हमने गांधी जी ने बात की थी सेल्फ स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की. ओके, सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट व्हेन वी फोकस ऑन ऑनलाइन एजुकेशन. आप ये आर्गुमेंट दे सकते हैं. ठीक है, सो यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कल हमने बात नहीं की थी, कल हमने बहुत बेसिक बात की थी. Now how artificial intelligence is going to help to improve the learning outcome, especially differently able जो होते हैं उनको स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं कि कुछ इनपुट्स दिए जाते हैं, लाइक टेलर मेड कोर्सेज कैन बी देयर. फाइन, द पेडागॉगिक मटेरियल यानी कि जो बुक्स है, करिकुलम जो है वो सारे नेशनल लैंग्वेजेस जो है, रीजनल लैंग्वेजेस जो है, नेशनल लैंग्वेजेस हम जिसको बोलेंगे, कि उनमें वो अवेलेबल होना चाहिए इसको इफेक्टिव करने के लिए. देन द गवर्नमेंट हैज़ द इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, तो ये सारे आर्गुमेंट्स, इनपुट्स आपको यहाँ से इस आर्टिकल से लेने हैं. और कंक्लूजन एक बैलेंस होना चाहिए जहाँ पे ब्लेंडेड मोड्स ऑफ एजुकेशन विल बी अनअवॉइडेबल, लाइक ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन वेयर पॉसिबल एंड लिमिटेड कॉन्टैक्ट फॉर लैबोरेटरी इंस्ट्रक्शन एंड इंडिविजुअल मेंटरिंग. तो ऐसे आप कंक्लूजन में लिख सकते हो. नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ एसे टॉपिक. कल ही हमने एसे टॉपिक की बात की. और एग्जामाइन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया. एग्जामाइन बोलने के बाद आप पहले बताएंगे कि यस, कि पहले ये उसके एडवांटेजेस है, ये लिमिटेशंस है, एंड देन यू कैन गिव द वे फॉरवर्ड. ओके, वेन एवर द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट एग्जामाइन. एंड द एसे टॉपिक ऑनलाइन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ एंड कॉस्ट. आपको दोनों साइड्स बात करनी है और एक वे फॉरवर्ड देना है. ठीक है,
तो ये इनपुट्स आप ले सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में. नाउ द ऑनलाइन एजुकेशन टॉपिक, आई गेस फ्रॉम दिस 2 आर्टिकल्स आपको बहुत सारे इनपुट्स मिल गए. आप ऐसे भी इस पे ट्राई कर सकते हैं घर पे. नाउ साइंस वर्सेस नॉनसेंस, लाइक आर्टिकल आया था एडिटोरियल पेज नंबर 6 में. So here the article is specifically talking about the Patanjali Ayurveda recent claims of having discovered a cure for COVID-19 disease. उन्होंने ये एक ड्रग कोरोनिल ड्रग लॉन्च किया था और बोला था कि ये सक्सेसफुल है, हमने क्लिनिकल ट्रायल्स किए हुए, ऐसे उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स किए थे एडवर्टाइजमेंट में. After that the government issued let's say notice against it and brought down all those advertisement, and now they have been asked to let's say give whatever the research they have done. Now the important points that you can use this for your article for your examination is that it shows India's regulatory checks and balances are wanting, यानी कि वहाँ पे लूप होल्स है, ये यहाँ पे दिखाई देता है. ठीक है, जो भी स्टडी हुआ था इट वॉज नाइदर पब्लिश्ड देयर रिजल्ट्स नॉर सबमिटेड फॉर इट्स पीयर रिव्यू. ठीक है, तो हम उसको बोल नहीं सकते कि वो इफेक्टिव है. सो सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स शुड बी लेट्स से यूज्ड इन आंसर. मोर देन आउटकम, इट इज़ द मेथड डिप्लॉयड that ought to be scrutinized by scientists to reinforce public trust in scientific assessment. Okay. There has always been a tension between traditional Indian system of medicine and pharmaceutical drugs. However, there is now common understanding that all these must pass through clinical trials. Okay. So ये आपको पता होना चाहिए, ये आप essay में लिख सकते हैं. ठीक है. So essay in terms of let's say हेल्थ जो सेक्टर के बारे में जब भी एस्से आता है या कोविड-19 के ऊपर आता है तो क्लिनिकल ट्रायल्स का इम्पोर्टेंस आपको पता होना चाहिए और उनका रेगुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है. सो वॉट एवर द स्टडीज दैट आर गोइंग ऑन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, they should be let's say in public domain, they should be published and they should be let's say peer reviewed. Fine. So such kind of inputs you can take for let's say essay as well as GS2 also, health sector, regulation of health sector. Fine. Now some articles for prelims examination. On the 26th June, that is yesterday, there was what you can say the celebration of yes, the international day against this drug abuse. Now international day against the drug abuse and illicit trafficking. तो उस दिन पर UNODC जो है क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम. ओके, तो ये जो ऑफिस है वो कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट एनुअली रिलीज करता है. फाइन. सो इस साल का रिपोर्ट जो है उन्होंने कल रिलीज़ किया हुआ है. एंड द ड्रग हाईलाइट्स दैट ड्यूरिंग कोविड-19 डिसीज देर इज़ मोर पॉसिबिलिटी दैट देर पॉसिबिलिटी ऑफ पीपल involving in the drug abuse or supply and production of these drugs. Okay, consumption also. Why? Because of adverse impact on economic hardship. Okay, so यूनाइटेड नेशंस ऑफिस, सम बेसिक्स अबाउट दिस UNODC आपके प्री में आ सकता है. तो क्या इन्फॉर्मेशन है? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1997 एज एन ऑफिस ऑफ ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन बाय कंबाइनिंग अर्लियर 2 ऑफिसेस. इट्स हेडक्वार्टर इज इन वियन्ना, ऑस्ट्रिया, and it is part of UNDG, that is Development Group of United Nations, renamed as UNODC in 2002. सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का जो होता है वो इस एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करता है. इट ऑल्सो होस्ट द सेक्रेटरीट ऑफ इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB. और वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो है वो ईयरली पब्लिकेशन है इनका. और अभी जैसे मैंने बताया 26 जून एवरी ईयर इट इज़ मार्क्ड एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग. तो UNODC जो है ये 3 नीचे दिए हुए जो भी कन्वेंशंस है या ट्रीटीज़ है,
तो इनके अकॉर्डिंगली काम करता है। तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स है, कन्वेंशन ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है, और ये इलिसिट ट्रैफिकिंग का एक कन्वेंशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का। एट द सेम टाइम, फॉर लेट्स से अवेयरनेस क्रिएशन about these drugs and crime problems, it has these 4 important awareness campaigns. ये भी आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। नो ड्रग्स कंट्रोल, डू ड्रग्स कंट्रोल योर लाइफ, ये ड्रग्स के अगेंस्ट कैंपेन है। या योर नो काउंट्स, ये जो है वो करप्शन के अगेंस्ट कैंपेन है। थिंक एड्स, ये जो है वो एड्स से रिलेटेड कैंपेन है। और आखिरी जो इम्पॉर्टेंट है, ब्लू हार्ट कैंपेन, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट है। फाइन, तो ये आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। प्रीलिम्स में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जांपल ये कैंपेन किस किस के है, और ये तीसरा जो है ना, अभी ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है, ग्लोइंग गॉन कैंपेन, यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, ठीक है। तो ये हमने जस्ट एडिशनल डाला हुआ है। तो ये जो है यूएनओडीसी का नहीं है, यूएनईपी का कैंपेन है, कोरल रीफ्स के रिलेटेड, ठीक है। सो अनदर क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड ऑन यूएनओडीसी, ये रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे बायएनुअली बात कर रहा है, तो वो एक्चुअली क्या है, एनुअली है, ठीक है, यस। So on same day, 26 June, Government of India also announced the relevant, let's say, action plan, anti-drug action plan. What are the inputs that you can have for your examination, prelims examination? आपको ये पता होना चाहिए कि annual anti-drug action plan launch किया गया है 272 vulnerable districts में, ठीक है। vulnerable जहाँ पे chances है कि इसका ड्रग प्रोडक्शन और अब्यूज़, कंजम्पशन और सप्लाई जो हम बोल सकते हैं ज़्यादा है। ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है। इसी को क्या नाम दिया गया है, नशा मुक्त भारत या ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन नाम दिया गया है। और इसमें फोकस सिर्फ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का नहीं है, तो कम्युनिटी आउटरीच का है, ठीक है, दोनों फोकस है। और ये अब तक जो है मिसिंग था, कम्युनिटी आउटरीच, जैसे कि सेंसिटाइजिंग पेरेंट्स, इन्वॉल्विंग स्कूल्स इन द प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज़, ठीक है। तो सोशल जस्टिस की जब बात आती है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ड्रग अब्यूज़ और सब्सटेंस अब्यूज़ जिसको बोलते हैं हम, तो ये एक चीज़ हम उसमें फैक्टर इन कर सकते हैं। Next article is talking about the ASEAN states warning South China Sea tensions. तो अभी एक आसियान समिट हुआ था, तो उस समिट में जो है वियतनाम और फिलीपाइंस ने चाइना के अगेंस्ट कंसर्न्स जो है वो रेज़ किए हैं। तो आपको पता होना चाहिए वो चीज़ कि क्या चल रहा है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, ठीक है। अभी इसके बारे में बेसिक्स हम पढ़ेंगे और आसियान के बारे में। तो आर्टिकल क्या बोल रहा है कि अभी कुछ दिन पहले अप्रैल में बीजिंग यूनिलैटरली डिक्लेयर्ड द क्रिएशन ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑन आइलैंड्स, ओके, एंड चाइना हैज़ बीन पुशिंग इट्स प्रेजेंस इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स ऑफ द अदर कंट्रीज, ओके। तो EEZ क्या होता है ये आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, जैसे कि मैरीटाइम जोन्स जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये मैरीटाइम जोन्स जो होते हैं, मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली बता देता हूँ, समझो ये एक कोस्ट लाइन है, ठीक है, कोई भी एक कंट्री की। तो ये यहाँ से जो इनका इनंडेशन है इसको बोला जाता है टेरिटोरियल लाइंस, और सॉरी यहाँ पे हम उसको बेस लाइन बोलेंगे। अब बेस लाइन से जब हम 12 नॉटिकल माइल्स जाते हैं तो वहाँ पे ये जो होगा वो टेरिटोरियल वाटर्स कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स अगर जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्टेजियस जोन बोला जाएगा, कॉन्टिग्यूअस जोन।
और वहाँ से हम अगर आगे जाते हैं 200 नॉटिकल माइल्स तो हम ये इसको EEZ ऑफ दैट कंट्री बोलेंगे, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये मैरीटाइम जोन्स है, कौन से कन्वेंशन के हिसाब से बनते हैं ये, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ठीक है। तो ये मेंशन आया हुआ है, तो आपको ये चीज़ें बेसिक्स भी पता होने चाहिए, ठीक है, फाइन। सो नेक्स्ट बेसिक्स अबाउट आसियान, आपको इंटरनेशनल बॉडीज़ के बारे में पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। सो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, मोटो क्या है, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, सेक्रेटरीट है जकार्ता में, एस्टेब्लिश किया गया 1967 में, बैंकॉक डिक्लेरेशन, 5 कंट्रीज़ है फाउंडिंग, अभी टोटल मेंबरशिप 10 मेंबर्स है, चेयरमैनशिप जो है वो एनुअली रोटेट होती है, अल्फ़ाबेटिकली जो इंग्लिश नेम है उनके हिसाब से। आसियान समिट यूनिक क्यों है, ये 2 बार होती है 1 साल में, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। जनरली बाकी बॉडीज़ जो होते हैं उनका एनुअल होता है, कुछ बॉडीज़ का बाई एनुअल होता है, जैसे कि हम नाम का देखते हैं कि बाई एनुअल था, ठीक है। तो आसियान एंड इंडिया रिलेशंस क्या है, 25 साल हो गए हम डायलॉग पार्टनर है, समिट लेवल इंटरेक्शन के लिए 15 साल हो गए, और पिछले 5 साल से हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में भी इन्वॉल्व है। इंडिया हैज़ अ सेपरेट मिशन टू आसियान इन जकार्ता, और आसियान जो है हमारा 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और 3 फंड्स है, फर्स्ट है इंडिया आसियान इंडिया कोऑपरेशन फंड है, दूसरा है आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है, और तीसरा है आसियान इंडिया ग्रीन फंड। ये भी आपको पता होना चाहिए मेंस में लिखने के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ओके। सो प्रीलिम्स MCQs, यस, ठीक है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हेडक्वार्टर कहाँ, सॉरी सेक्रेटरीट कहाँ से लोकेटेड है और ऑल दिस थिंग। देन देर इज़ आर्टिकल, एक छोटा सा आर्टिकल आया था कि वोटर्स जो है जो 65 एंड अबव एज के होंगे, ठीक है, तो उनके लिए अभी पोस्टल बैलेट अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि लॉ मिनिस्ट्री ने एज रिड्यूस कर दिया है पोस्टल बैलेट लोकसभा और असेंबली इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो वो कितना किया है, अलाउइंग दोज 65 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। और इससे पहले अक्टूबर 2019 में भी लॉ मिनिस्ट्री ने एक अमेंड किया था रूल्स, जिसमें बोला था कि डिसेबिलिटीज़ या जो 80 साल या उसके ऊपर जो है वो भी पोस्टल बैलेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एज क्राइटेरिया कम करके 65 किया है, वाई, बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली दीज पीपल आर वल्नरेबल एंड दैट्स वाई ये एज कम कर दिया गया है। नाउ व्हाट इज़ पोस्टल बैलेट सिस्टम, इसमें पोस्टल बैलेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली मेल किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इलेक्टर्स को, और फिर बाद में वो प्रिंट आउट करके वो इलेक्शन ऑफिसर्स को पोस्ट के द्वारा भेजे जाते हैं, ठीक है। और अभी जो है करंटली ये नोटिफिकेशन आने से पहले 3 कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए था, सर्विस वोटर्स जो आर्म फोर्सेस के लिए है, और गवर्नमेंट सर्वेंट्स अब्रॉड में जो है उसके लिए, फिर सेकंड है वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, एंड थर्ड वोटर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। और ये जो नोटिफिकेशन है हम बोल सकते हैं यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ और 80 साल, तो हम बोल सकते हैं कि ये अभी 80 जो है वो चेंज होके अभी क्या हो गया है 65 एंड अबव। ये आपको प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, फाइन। यस, द रेगुलर डेली डेवलपमेंट्स ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ, आपको ये फॉलोअप रखना है कि क्या हो रहा है डेली, कि जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेट से बोला है कि भले ही वहाँ पे आर्म बिल्डअप हो रहा है चाइना के साइड में, बट देर इज़ मार्क रिडक्शन इन रिसेंट टाइम्स, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बोला है कि पिछले 3 दिन में देर हैज़ बिन नोटिसेबल थिनिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ चाइनीज़ ट्रूप्स, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप मेंशन कर सकते हो फॉलोअप में, ठीक है। सो व्हाट आर द कैप्शंस एंड कोटेशंस, यस, द first one you can mention in terms of IR, while the entire world is stretched thin in the fight against pandemic, irresponsible acts and acts in violation of international laws are still taking place. Basically वो जो आर्टिकल आसियान का था वहाँ पे एक इंडोनेशिया या फिलीपाइंस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है ये स्टेटमेंट,
और उन्होंने बोला है कि ये चाइना से रिलेटेड स्पेसिफिकली बोला है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना सी में जो एक्टिविटीज़ हो रहे। नाउ दिस वाज आर्टिकल ऑन द एडिटोरियल पेज, उन्होंने बोला था राइट, गन्स, जर्म्स एंड स्टिल क्राइसिस। सो इन दैट व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस थ्री क्राइसिस एंड गांधी जी's नई तालीम, इट इज़ टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग. Then there is a conclusion part, we have mentioned blended modes of both online education and classroom learning. तो ये दो जो है वो हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड है। और रिसेंटली हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी है, उन्होंने एक सिविल सर्विसेज के बारे में स्टेटमेंट कहा है, आपने ये एथिक्स में यूज़ करना चाहिए, एसए में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जो स्टेटमेंट है, फ्रॉम बीइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ परपेचुअल ऑफ स्टेटस को, जो ब्रिटिश टाइम के था, तो अभी बाद में इनका रोल कैसे चेंज हुआ है। सिविल सर्विस वॉज एनवेसेज्ड एज implementational agents of a mammoth socio-economic and political transformation. Fine. So such kind of statements should be written in essay, and even it can be written in essay, ethics paper. When we talk about let's say civil services part, जो second part है ना ethics का, जो ethics in governance वाला जो part है, civil services values and all. Fine. So this was about today's newspaper, The Hindu. For further information related to the editorial discussion classes, wherein the in-depth analysis of mains related articles or issues by the Ansari sir and team, you can contact Lukman IAS. Thank you.